اسپرچل انکاؤنٹر سیریز کا آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں پام سنڈے کے موقع کے اوپر، کرائسٹ ایز کنگ انکاؤنٹر فار اسرائیل، یہ میں اسرائیل کے لیے مسیح کا استقبال۔ متی کی انجیل 21واں باب 4 آیت، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ ملاکی 3 باب 1 آیت، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ یہ جان بیپٹسٹ کا حوالہ ہے، آگے کرائسٹ کا شروع ہوتا ہے۔ اور خداوند جس کے تم طالب ہو نہ گہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ یہ حوالہ جو ملاکی کا میں نے پڑھا ہے، تو ایک ہی ورس میں اور ایک ہی ورس میں بی پارٹ کرائسٹ کی ذات کے حوالے سے۔ اور جب ہم پام سنڈے میں یہ ورشپ اٹھا رہے ہیں، یہ خوشی شادمانی یقیناً آج کے دن بہت ہے۔ کرائسٹ ایز کنگ ڈکلیئر کیا اس نے اپنا آپ۔ بائبل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ذات کا ہر نام اور وہ ایونٹ جو بائبل میں کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے ہے، ہمیں بھرپور ہو اور اس میں اپنا آپ دیکھیں کہ کتنا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یقیناً اسی لیے یہاں موجود ہے، مگر بعض رسمی آتے ہیں، چونکہ دن اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھنا ان کو شرم آتی ہے۔ اسرائیل کے اندر 3 سال موجود رہا نبی کی حیثیت سے، چونکہ وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، کاہن بھی ہے، تو یہ ٹائٹل بھی اسی کے نام، بے شک وہ آگے جا کر ڈکلیئر ہوتے ہیں، مگر تینوں منسٹری کے ساتھ، بلکہ اس سے بڑھ کر سن آف گاڈ، اتنا بڑا مقام، مگر بنی اسرائیل نے اس کو پہچانا نہیں۔ تو کتنا افسوس، آپ سوچیں آتا یا نہیں؟ صحیح ان کو مار پڑی، آج تک جو مار پڑی ہے نا، ذلیل ہوتے رہے ساری دنیا میں۔ روپیہ پیسہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اسرائیل کہے جی ہمارے پاس بڑے پیسے۔ جن کے پاس مسیح نہیں ہے وہ خالی ہیں، اور جو ایماندار فائنینشلی کمزور بھی ہو، مسیح ہے تو رچ ہے، آمین۔ مگر وہ بھی اپنے آپ کو مشکل میں سمجھ لیتے ہیں جب ایماندار بھی مشکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہ روز تعلیم حاصل کرنا، پھر جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ مگر آپ سب کے لیے میں شکر کرتا رہتا ہوں جو کلیسیا کے ساتھ مل کر ورشپ کرتے ہیں۔ مسیح جو بادشاہ ہے اس کے استقبال کو آئے ہو، اس وقت وہ نہیں آئے پر وہ کمی آج ہم پوری کر رہے ہیں۔ وہ کام ہولی اسپرٹ ہم سے کروا رہا ہے جو انہوں نے پراپر نہیں کیا، پر کیا ضرور۔ ان سے کہا گیا اے اسرائیل
मुलाकात की तैयारी कर, पर उन्होंने की जरूर, पर प्रॉपर नहीं, पर की, इनकाउंटर हुआ। मगर 3 साल तक वो नबी फिरता रहा उनके बीच। उनके घर घर, उनके हर शहर में हर तरह का मौजा वहां हुआ है, मगर उन ढीठों की आंखें बंद। तो मार पड़ी तो सही पड़ी, बच्चों तक रुसवा हुए, बेटियों तक, नवाले के वो मुताज हुए। जो मसीह को बादशाह नहीं मानते उनको रोटी देगा, उनको अच्छा ड्रेस में देखेगा, खुश होगा। उनको तालीम याफ्ता घर बार वाला देखे तो खुश होगा, नहीं। बहुत से लोग गैर कौमों के कहते हैं कि हम खुदा से सवाल करेंगे कि तूने हमें गरीब क्यों मारा, इस दुनिया में क्यों जलील होते रहे। तो उनको मैं बताता हूं, मसीह ने तो उस वक्त जाके पूछ लें, पर यहां हमसे पूछ लें, उनकी पूरी तसल्ली कराएंगे। जब मसीह की तरफ नहीं आओ तो जलील ही। हमारी आंखों के सामने रोड्स के ऊपर लोग मरते हैं, भीख मांगते हैं। अफ्रीका में देखे, इंडिया में देखे, पाकिस्तान में देखे, दुनिया भर के अंदर मेजॉरिटी मुश्किलात का शिकार है। तो जब जाना ही उन्होंने जहन्नम में है, तो यहां भी जहन्नम उठाएं। तो रूमियों के खात में जो मैं तालीम दे रहा हूं, लिखा है उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा। खादम चीख रहे हैं, सुना रहे हैं कलाम, मगर ऐसे लोग आज भी टस से मस्त नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो 25% मसीह के साथ, 50%। जब तक 100% नहीं चलेंगे बरकत नहीं आएगी। पूरा 100% हमें, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। आमीन। तो आज का दिन कितना सेलिब्रेशन होनी चाहिए, हो रही है। उसमें 50% वाले भी कर रहे हैं, 5% वाले भी कर रहे हैं, पर वर्शिप कबूल होगी जो 100%। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सरमन की डिटेल से पहले यही आप सबको जोर देना चाहूंगा कि हम अपनी राहें दुरुस्त करें। अगर कोई नीम गर्म है, अपने आप को चोजन जाने, पर अगर नहीं है तो चाहे मेरा अपना बच्चा क्यों ना हो, अगर चोजन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मारा जाएगा इस दुनिया। और मुझे नजर आ जाता है घरानों में से भी, कलीसियाओं में से भी, इर्द गिर्द चर्चेज में से भी वो लोग दिख जाते हैं, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और जो बादशाह मानते हैं वो डिसाइपल साथ साथ रहे, 3 साल साथ साथ रहे या नहीं। यहूदिया में, सामरिया में, गलील में, गतसमनी में आके जो उनका रवैया था सुस्त हुआ, और उसके बाद जब बेदार हुए तो फिर शहीद हो गए। चले माना किसी के ऊपर आ जाता है सुस्ती का, पर निकल जाए, ये नहीं कि पड़ा है। लिखा साधक गिरता है उठ खड़ा होता है, शरीर गिरता है, आगे बोलिए, पड़ा ही रहता है। इसलिए उठ जाना, अगर हो ही गई है कहीं मिस्टेक, उठिए, चलिए खुदा के साथ, उसकी वर्शिप करते रहना। और जो मत्ती की इंजील का रेफरेंस 21वें बाब में से पढ़ा, वो पीछे जकरिया 9वें बाब का रेफरेंस, जो वहां पर लिखा गया है, सयून की बेटी से कह, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है, हलीम है, गधे पे सवार है, नजात उसके हाथ में है। किससे कह? सयून की बेटी से। दुख तेरे से, सयून की बेटी।
घरों में भी माँ बाप बेटों को भी प्यार करते हैं, पर बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है। वो घर के कोने के तराशे हुए महलों के वो सतून होते हैं। घरानों की खूबसूरती कलीसियाओं की उन्हीं से। तो अगर प्रैक्टिस होंगी तो फिर क्या उनकी जिंदगी। घरों में भी इज्जत, सब कलीसिया में ताकों की मानक दिखे, फलदार जिंदगियां जैसे आप हैं। तो दुखते सयून जब वो कहता है तो आप बताइए कि इस टर्म से कितनी खुशी मिलती है। फीमेल तो बहुत खुश होंगी दुखतर, मगर मेल भी उसी तरह खुश हो, वो भी इंक्लूड है उन्हीं के अंदर, दुखतर के अंदर बेटी के वो भी। तो सयून की बेटी से कह रहे, देख तेरा बादशाह आता है। हालांकि नबी भी है, हाई प्रीस्ट भी है, पर क्या कहा, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो बादशाह की हैसियत में ही आज के जो सदर है, तो यरूशलेम के अंदर जब दाखिल होता है तो शागिर्दों से कहा जाता है कि सामने गांव में जाओ और गधे को बंधा हुआ देखोगे, लादू को तो ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे, यानी पूछे बगैर लाना, सारी चीजें उसकी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप उसके, वो हमसे पूछ के चलेगा, हाँ? इस्तेमाल करता है। अगर कोई पूछे तो फिर कह देना मालिक को इसकी जरूरत है। तो आगे लिखा वो जाने देगा। और ऐसा ही हुआ, मालिकों ने उन डिसाइपल से कहा, भाई क्यों खोलते हो? उनको उस्ताद को इसकी जरूरत है। आप देखिए आज तो उसके बादशाह होने का ऐलान है और प्रोफेसी पीछे है, गधे पे वो बैठा है, तो उसके बगैर तो फिर सवारी नहीं होनी। पहले तो पैदल ही चलता था, मगर अब वो उसने कहा जाकर कहना, तो उन्होंने जो ही कहा कि उस्ताद को जरूरत है तो जाने दे। आज उसको मेरी आपकी नीड है, जरूरत है, और हमें पहले से मुकर्रर किया हुआ, चुना हुआ है, तो लगे हुए। हमें कोई इंसान नहीं काम करवाता, हमसे होली स्पिरिट करवाता। और हमें पता लग गया हुआ है कि हम चोजन है। हमारा दिन रात हर लम्हा यहोवा के लिए है, क्राइस्ट के लिए, मसाया के लिए, क्योंकि उसने अपने खेत में लगा लिया है इमारत में काम करने के। उससे कलीसिया में हमें पौधा बनाकर रख दिया है और इस दुनिया में उसके नाम को जलाल देंगे। और आप देखेंगे और देख रहे हैं, और आपको भी हम देख रहे हैं। और जो नहीं दिखते वो अपनी फिक्र करें, मारे जाएंगे यहां भी आगे। ऐसों के साथ हमदर्दी बार बार नहीं होती, एक वक्त में हम देते हैं, पर जब मालूम पड़ जाता है कि ये चोजन नहीं, हालांकि जजमेंट तो नहीं करते, ना ही कर सकते हैं, पर तो भी फलों से पता तो चलता है कि हमें वेस्ट टाइम नहीं करना। अपने पांव की खाद झाड़कर आगे निकल, मत रुक। वो घराना, वो लोग इस काबिल नहीं कि अपना वक्त जाया करें। तो ये पता होता, नबी इसी तरह करते थे। और यहां जो प्रोफेसीज भी पढ़ी गई हैं, तो क्राइस्ट के डिसाइपल ने फिर उसी तरह किया। गधे के ऊपर उन्होंने फिर कपड़े बिछाए और क्राइस्ट उसके ऊपर बैठ गया। आप अपने माइंड के कैनवस पे लाएं पिक्चर कि वो गधे के ऊपर जब बैठा। मैं तो एक एक लम्हा सोचता हूं, कैसे कैसे, समझे? वो एक एक लम्हा जो था फुलफिल हुआ। लिखा, उस गधे के उस बच्चे को जब लाओगे
تو آگے لکھا ہے اس کے اوپر آج تک کوئی نہیں بیٹھا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو کوئی نہیں، کسی نے سواری نہیں کی، وہ مسیح کے لیے تھا۔ آمین، وہ بولیے مسیح کے لیے۔ میں آپ دیکھیں مسیح کے لیے یا کبھی شیطان بھی استعمال کر جاتا ہے، اگر کوئی گالی بولتا ہے، بری بات کرتا ہے، حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دنیا داری اس کے اندر بسی ہے، شیطانی کام کر جاتا ہے، یا صرف مسیح کے لیے جیتا ہے، یہ دیکھ لیں اس گدھے کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا، صرف مسیح۔ میں آپ ویسلز خدا کے گھر کے لیے ہیں۔ نبوکدنضر نے ان ویسلز کو اگر استعمال کیا تو اس کی دیوار کے گچ پہ لکھ دیا گیا، بولیے منے منے تکیلو فرسین، میں نے تیری مملکت کا حساب کیا، تجھے تولا اور تو کم نکلا۔ میری آپ کی زندگی کے اندر ابلیس کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ لادو کے اوپر سوار ہوا، اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا تھا سوائے مسیح کے۔ حالانکہ جب بچہ ہو ابھی تو ماں جانے نہیں دیتی بچے کو، مگر وہ پھر ڈکارتی ہے پیچھے سے، مگر اس بچے کو جانے دیا۔ میں جانے دیں اپنے بچوں کو خدا ان کے پاس، مت روکے، اسٹڈی میں ان کو بھیجیے، ساتھ لائیے، آگے لے کر چلیے۔ سنڈے اسکول کے بچوں کو دیکھیں، یہ بھی وہ ماں باپ ہے جن کے بچے تھے۔ کیوں ہمارے اوپر ابلیس سواری کر جائے ہماری زندگیوں کے اوپر؟ ہم حیوان تھے پر اب اس کے لپالک فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ لیول، وہ مقام جو کرائسٹ کا ہے وہ ہمارا لیول، وہ ہماری پاکیزگی ہے۔ پریز اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ورشپ کے لیے خوب تیار کریں، آگے بڑھائیں، خداوند کے ساتھ لے کر چلیے ان کو، ان کا فیتھ چیک کریں، جس طرح ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں نا تھرمامیٹر سے، ان کا ایمان کم اعتقاد ہے، بے اعتقاد ہے، مسیح کو پیار کرتے ہیں اور کتنا خدا کے ساتھ چلتے، تو اس گدھے کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ کون بیٹھا؟ بولیے یسوع مسیح۔ ہاں؟ آپ کہیں گے وہ گدھا کتنا خوش نصیب تھا، یہی کہیں گے، یہی کہیں گے، بولیے، بولے نا، وہ گدھے کا بچہ کتنا خوش نصیب تھا، یہی کہیں گے، بولیے۔ بھئی ہم گدھوں سے بھی آگے ہیں، ہم انسان ہیں، تو انسانوں کو وہ پیار کرتا ہے، جانور تو بھی اگر گدھے سے اتنے میں تو بہت خوش ہوں گدھے کا بچہ، تو اگر کوئی اس دور میں بڑا کچھ گدھ رچ ہوتا وہ خرید ہی لیتا گدھا کہ میرا یسوع بیٹھا ہے اس کے۔ آمین۔ پر میں آپ کتنے قیمتی ہیں، اس گدھے کے بچے سے بھی زیادہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، گدھے نہیں ہیں، سمجھے؟ جانور نہیں ہیں۔ اس کے لیے وہ سلیکشن کرتا ہے تو اپنے کام کے لیے کتنی سلیکشن اس کی ہونی چاہیے۔ اس لیے شیطان کو اپنے اوپر مت سوار کرے، صرف مسیح، ہولی اسپرٹ۔ ہولی اسپرٹ نے لکھوایا، بولیے کیا؟ سیون کی بیٹی سے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، کنگ آتا ہے تیرے پاس۔ تو انہوں نے نہیں پہچانا، موجے بھی دیکھے، نبی کو بھی قدر نہیں کی، آج بھی کئی خادموں کی کلام کی عزت نہیں قدر کرتے، بھی مسیح کی نہیں کی تو میری آپ کی نہیں کرے گا تو بھائی اسی لسٹ میں لے کے جائیں گے اس کو۔ پر اس وقت بھی قدر کرنے والے آج بھی ہیں، چوزن تو ہے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، ایک ہی کلاس کے لوگ ہوں گے تو کیسے نہیں ہوں گے بھائی؟
भी चोजन है तो कैसे नहीं होंगे, ये कैसे बिरादरी मेरे साथ नहीं होगी और आप नहीं होंगे, भी जब चोजन है नहीं होंगे तो नहीं होंगे। पर हम हैं, हम चोजन वन हैं। बोलिए, हम चोजन वन हैं। ये रिकॉर्ड होगी ऊपर हेवन पे, क्योंकि जो हम ये बात करते हैं ऊपर, तो जो ऊपर होती है वो नीचे आ रही होती। ये एक ही डायलम है, समझे, इसको समझ जाएं। वो तख्त के ऊपर बैठा है, यहोवा देखता है, होली स्पिरिट यहां। हम बेकार यहां नहीं ऐसे खड़े हुए या बोल रहे, एक सिस्टम में, एक स्पिरिचुअल रैलम के अंदर। तो ये इनकाउंटर हुआ है, इजराइल बाहर आ गया, सारा तो नहीं आया पर आ गया। क्यों आया? लाजर 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ तब आए। ये नोट कर, मुझे पहले भी हुए बड़े, 5000 को भी खाना खिलाया। जब लाजर, क्योंकि उनको मालूम था कि 4 दिन का तो जिंदा हो ही नहीं सकता, तो वो सोचते हैं कि 3 दिन तक रूह फिरती रहती है कब्र के, चुके कोई जिंदा हो सकता है, ये उनकी सोच थी। तो क्राइस्ट ने कहा मैं चौथे दिन जाऊंगा। तीसरे दिन जिंदा कर दिया तो कहेंगे जी रूह फिर रही थी, क्राइस्ट का क्या कमाल। तो चौथे दिन, पर जब ईमान रखते हैं तो लिखा है गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा। लिहाजा क्राइस्ट चौथे दिन गया। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि उनके फलसफे, उनकी रवायात, उनको शिकस्त दी जाए, उनको शर्मिंदा किया जाए, उनको बताया जाए कि लाजर को जब मर्जी जिंदा कर सकता हूं, वो है ही जिंदा। लिहाजा वो पहले तो रोया, तो लोग कहने लगे देखो कितना इसको प्यारा, तो यीशु को क्या गम, मौत के ऊपर यीशु क्यों रोए? ना वो रोया इस वजह से कि उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख है कि लाजर मर गया। भाई जब वो है ही जिंदा तो वो क्यों रोए? हमें भी नहीं रोना चाहिए क्राइस्ट की तरह। पर क्राइस्ट रोया, वो मुर्दा के लिए नहीं रोया, उनकी सख्त दिली की वजह से कि मैं जिंदा भी कर दूंगा। ये ऐसे ही ढीठ ऐसे ही रहेंगे। यिर्मयाह भी रोया, हिजकिय्याह भी रोया, रोते ही रहे, यहोवा भी रोता रहा, आज भी रोता है। मेरी आंखें खिलबत खानों में गम खाती रोती, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें चश्मे। शब रोज रोता रहता, मतन करता कि उनकी सारी सोचों के ऊपर पानी फिर वो निकले कि ये नासरत का नबी यीशु है। और जब वो गधे के ऊपर बैठ गया तो उन्होंने बादशाह मान लिया कि ये वो है जो हमारी रवायात के ऊपर गालिब आया, इसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया है। यही इजराइल का बादशाह है, यही जो मौत के ऊपर फातेह है, मौत भागती है उससे, ये वो हस्ती है। जकरिया की किताब और मत्ती की किताब के अंदर भी लिखा, से उनकी बेटी से कहे देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, सादिक है, हलीम है, गधे पे सवार है और नजात उसके हाथ के अंदर है। वो नजात देने के लिए आ रहा है। और इतना बड़ा मौजूदा देकर वो ईमान ले आए कि ये वही है जिसने मुर्दा जिंदा कर दिया है 4 दिन का, वही नजात देने वाला है। और होशाना के नारे लगने शुरू हो गए। ज़बूर 118 के मुताबिक ये वही दिन है जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हुआ। बोलिए, ये वही दिन जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हुआ और लिखा कि हम इसमें खूब शादमान होंगे। ये वो दिन है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये वो दिन है यानी जिसके अंदर वो गधे के ऊपर सवार होकर आया है। बिन सिय्योन ए दुख्तर यरूशलेम, खूब ललकार, खूब शादमान हो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है।
निशानी है कि वो बादशाह है, निशानी है वो गधे पे सवार है, घोड़े पे। वो जंग करने नहीं आया, वो निजात देने के लिए आया है। निशानी है कि उसकी राह में कपड़े बिछाए जाएंगे, डालियां काट कर वो लहराने लगे, रास्ते में बिछाने लगे, क्योंकि लिखा ये वही दिन, और उसमें लिखा ऐ खुदा हमें बचा। ज़बूर 118 के मुताबिक होज़ैना, होशाना का जो मतलब है, और अरेमिक लैंग्वेज में होशीना, होशाना, होज़ैना, सेव अस, हमें बचा, नजात दे। ये वही दिन आया है बादशाह जो 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर सकता है, आया है हमें बचाने के लिए। तो क्या ऐ बिन सिय्योन ललकार, खूब शादमान हो। इसलिए तो बच्चे भी मैं नारे लगाते हैं कि यीशु हमारा बादशाह आज के दिन डिक्लेयर किया गया है। गधे के ऊपर बैठेगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि लिखा है वो गधे के ऊपर सवार। ये निशानी, लादू के ऊपर सवारी, बिन सिय्योन आ गया है तेरा बादशाह, पहचान ले। इनकाउंटर उनका हो गया मसीह के साथ। अमूस को कहा गया कि इज़राइल मुलाकात की तैयारी कर। आज वो मुलाकात की तैयारी के लिए आए। कैसे? डालियां राह में बिछा रहे हैं, कपड़े राह में बिछा रहे हैं। यह भी निशानी थी, जिसको बादशाह माना जाता था उसकी राह में कपड़े बिछाते थे। जैसे यहू बादशाह जब वो मुकर्रर हुआ तो फौरन उन्होंने कपड़े बिछाए। तो इस्राएल को मालूम था कि ये जो कपड़े बिछा रहे हैं, रेड कारपेट जो बिछाया गया, ये बादशाह आया है पर इस्राएल का, मगर बादशाहों का बादशाह वो आगे आएगा। ये सारा फर्क हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा किंग है, प्रॉफिट है, हाई प्रीस्ट है, खुदा का बेटा है। हम उसकी वर्शिप करते हैं। तो फिर होज़ैना के जो नारे लगे, तो आप बताइए कि कितना होशाना के नारे, उनको पता था कि वो आएगा बचाने के लिए। वो मुंतजर थे। बिन सिय्योन देख तेरा बादशाह, बोलिए मेरे साथ, तेरे पास आता है। वो सादिक है, बोलिए हलीम है, गधे पे सवार है, आगे बोलिए नजात उसके हाथ में है, कोई और नजात नहीं दे सकता। नारे मार रहे, डालियां लहरा रहे हैं, बादशाह हमारा किंग आ गया है। मगर गधे के बच्चे के ऊपर बैठा रोने भी लगा। वो खुश हैं, आगे लोग खुश हैं, मगर वो रोने लगा। यहां रोने लगा, हंस रो रहा। लिखा है यरूशलेम को देखकर उस पर रोया और कहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले लेना चाहती, मैंने चाहा कि तुम्हें लूं, तो तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। ऐ यरूशलेम नबियों की कातिल, एक जगह पर दुखते सिय्योन कहा जा रहा है, दुखते यरूशलेम कहा जा रहा है, एक जगह पर कातिल नबियों की, खुदा के बंदों का कलाम कर दिया और रोने लगा। और क्या कहा उसने? ये कहा कि ये वो वक्त, काश आज के वक्त में तू पहचान जाता मुझे, जिस रोज तुझ पर निगाह आया तो तुमने मुझे नहीं पहचाना। 3 साल का नहीं पहचाना। भाई मैं आप कब से कलाम सुन रहे हैं, ओ भाई अभी तक पहचान रहा है, अभी तक हम रोते रहे, कूदते रहे, बाज जिंदगियों के ऊपर, बाज घरानों के ऊपर, बाजों की औलादों के ऊपर, बाजों की जिंदगियों के ऊपर, कि वो क्यों आपने घरों में मेहनत नहीं करते, क्यों खुदा के साथ ठीक नहीं करते, क्यों? उनको क्या, उनको मालूम नहीं कि उनका बादशाह। तो वो रोया। तो इतनी बड़ी बात के ऊपर रोया, मगर जब यीशु मसीह स्लीब उठा रहा था तो फिर उस
वो रोने लगी औरतें। उसने कहा इस्राएल की औरतों मत मेरे ऊपर रो, अपने बच्चों पे रो, अपने बच्चों पे छाती पीटो, तुम्हारा घर तुमसे ले लिया जाएगा, यरूशलेम तुमसे ले लिया जाएगा। तो रोओगे चिल्लाओगे। तो 70 ईस्वी में भी रोए चिल्लाए, वो रोते ही आ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आती, पर अलर्ट हो जाए, उसकी इज्जत करे, उसकी ऑनर करे। बिन सयोन बोलिए नहाए शादमान हो, देख तेरा बादशाह बोलिए तेरे पास आता है, सादिक है यानी राइटियस है। तो अब बताइए तस्दीक जिसके कलाम से हम रासबाज हो जाते हैं वो रास्त ये में हलीम है, हम्बल, मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूं, हम्बलनेस फरोतनी। लिखा है कि अगर किसी के अंदर तकब्बर है, गरूर है, तो लिखा है हलाकत से पहले तकब्बर। जिसके अंदर भी तकब्बर, प्राइड, हसद होगी जिसके भी अंदर, वो हलाक। मगर लिखा है फिरौतनी के हवाला से कि जिनके अंदर फिरौतनी है उनको सरफराज करेगा। तो हलाकत से पहले तकब्बर, पर बोलिए सरफराजी से पहले बोलिए फिरौतनी, हम्बलनेस। यीशु मसीह खुदा का बेटा हम्बल, हलीम, गधे के ऊपर सवार, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर नहीं आया, रथों पे नहीं आया, घोड़ों के ऊपर नहीं, जंगे लड़ने नहीं, जान कुर्बान करने के लिए आया है। नजात उसके हाथ के अंदर है। तो नजात जब उसके हाथ में, मैंने आपने नजात पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बिन सयोन नहाए शादमान हो, देख तेरा बादशाह किंग तेरे पास आता है, वो सादिक है, हलीम है, गधे पे सवार है, नजात उसके हाथ में है। इज़राइल ने एनकाउंटर कर, और क्या कहा, होसेना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ज़बूर 118 का रेफरेंस लिखे, हम तुझे खुदा के घर से दुआ देते हैं। दुआ का मतलब है वर्शिप करते हैं हैकल के अंदर। तो हवाला मैंने ये पढ़ा है कि वो अपनी हैकल के अंदर ना कहां आप मौजूद होगा। ये मैं अपनी हैकल के अंदर बोलिए सडनली, ना कहां, अचानक, एकदम, मैसेंजर ऑफ कोविनेंट, अपोस्टल ऑफ कोविनेंट, अहद का रसूल अपनी हैकल में बोलिए आ मौजूद होगा। मुकद्दस सुनिए, यीशु मसीह नबी के तौर पर लोगों के दरमियान खिदमत की काम किया, मिरेकल किया, मगर बादशाह की हैसियत से टेंपल के अंदर प्रोफेसी है कि अपनी हैकल में नागहा आ मौजूद होगा। और होशाना के नारे लग रहे थे और हैकल में चला, और कोड़ा बनाकर कबूतर फरोशों को, सराफों को निकाल दिया। और फकी फरीसी रबी कहने लगे कि इनको खामोश करा, चुप करा। तो कैसे क्या कहा, ज़बूर 8 का रेफरेंस, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि खुदा ने बच्चों शीर खानों के मुंह से हम्द को कामिल करवाया? यानी उडेन, ये बच्चे ये उडेन थे, जैसे मुझे हैकल में आना था, ये भी मुकर्रर थे ताकि होसेना कहें, होसेना ही रहा। आगे बाला पर होशियाना और कहने लगे देखो दाऊद की बादशाही आ रही है, इब्ने दाऊद को होसेना, इब्ने दाऊद को होशाना, वो हमारा बादशाह आ रहा है। लोग कहने लगे ये कौन है? नबी, ये नासरत के शहर का नबी, बोलिए यीशु है। ये कौन है? ये नबी है। पर बास कहने लगे बादशाह है, होशाना कहने लगे। तो नबी कहने लगे इनको खामोश करा। क्या कहा क्राइस्ट ने? अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चला उठेंगे। उनका बादशाह आया है। मैं आप पत्थर नहीं है, जिंदा पत्थर। बोलिए मैं आप
पत्थर नहीं, जिंदा पत्थर, लिविंग स्टोन। तो फिर अगर वो पत्थर जला उठेंगे, आज तो जिंदा पत्थर जलाने देंगे। बोलिए होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। इतना प्यारा यीशु, मुबारक मुबारक यीशु। बात साइमन आप लोग गाते हैं, कितना अच्छा लगता है, मुबारक मुबारक यीशु। तो वर्शिप है उसकी प्रस्तिश है। तो लिखा वो नागहा अपनी, बोलिए, हैकल में आ मौजूद होगा। और वो आया ये हैकल। और क्या कहा फिर आते हैकल के अंदर आकर, तो जैसे शायद वो लूटते हैं ना, लूटने के बाद खो में चले जाते, गारों में छिप जाते, छिपा लेते हैं अपने आप को। में खो में आके छिप जाते। तो तुमने मेरे घर को, बाप के घर को डाकुओं की खो बनाया हुआ है। ये खो है कि जहां आप दुनिया की आंखों से छिप जाएंगे। ये दुआ का घर, और तुम लोग गुलाह भी करते हो, हैकल के अंदर भी आते हो। कबूतरों के अड्डे यहां पर बनाए हुए, यहां पर बैंक चेंजर बैठे हुए हैं, यहां पर सराफे बैठे हुए हैं। उन सब को बाहर निकाल दिया। अगर सुलेमान बादशाह हैकल को बनाता है, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा वो हैकल को साफ करने भी आता है, वो बनाने से भी ऊपर। आमीन। साफ करने, उनकी तो हैकल को साफ किया, पर मेरी आपकी हैकल को, कलीसिया को अपने खून से हमेशा के लिए पाक कर दिया। हैकल तो ना कहा, ये मुकाशवा नोट कर ले, ना कहा वो अपनी हैकल मौजूद होगा। तो वर्षे होती चली गई, नारे लगते चले गए, डालियां बिछाई जा रही हैं, होशाना के नारे लगाए जा रहे हैं। और वो हैकल क्या। तो आप देखिए, कोई भी जुलूस आज भी अगर निकले, जैसे ईस्टर के रोज सुबह सवेरे जुलूस निकालते हैं ना, सनराइज का जो जुलूस निकलता है, तो खत्म कहां पर करते हैं? कब्रिस्तान जा। तो हर कोई कब्रिस्तान जाके खत्म करता है, क्योंकि कब्रिस्तान क्राइस्ट वहीं करते हैं। तो ये यीशु का जुलूस कहां खत्म होना था? बोलिए ना, कहा अपनी हैकल के, हैकल के। ये नहीं किसी चौराहे पे जाके कहते चलो भी जाओ अपने अपने, ये नहीं, ऐसे नहीं कि जुलूस, समझे? नो, ना कहा, बोलिए, अपनी हैकल के अंदर आ मौजूद होगा। आया, वो अहद का रसूल है, बल्कि नए अहद का रसूल है। जब अहद का कहा जाए तो नए अहद का रसूल है। कोविनेंट बांधा, अहद बांधे गए हैं। काश कोई कोविनेंट के ऊपर सोचे कि मेरा आपका कोविनेंट बंधा है उसके साथ, मेरा अहद बंधा है उसके साथ। वो अहदों का मालिक है, वो अहदों का रसूल है, वो मैसेंजर है, वो आया है अहद बताने आया। वो हैकल में आके अहद बताएगा। और उसने बताया, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? खालों के मुंह से बोलिए, हमद को कामिल कराया, यानी ओडेन कराया, हमें मकसूद, हम चोजन थे, पहले से मुकर्रर थे, यानी वो मुकर्रर थे जैसे मैं आप आज मुकर्रर हैं कि पाम संडे आज के रोज यीशु मसीह को मानने के लिए यहां बैठे हैं, बल्कि मान लिया है दाऊद की तरह। ज़बूर दाऊद 2 में कहता है, मैंने अपने बादशाह को अपने कोई मकदस के ऊपर बैठा लिया है, बैठा हुआ है। वो बादशाह मेरे अंदर रहता है, मैं उसकी बादशाही के अंदर हूं।
तो हैकल के अंदर आ मौजूद हुआ। कॉविनेंट पता है, हर चीज का पता है। और वो खामोश कराने लगे, चुप कराने लगे, कहने लगा अगर ये चुप हो गए, खामोश हो गए, तो बोलिए पत्थर। पत्थर बोल उठने थे। तो मैंने अभी कहा जिंदा पत्थर ना बोले, हम तो जरूर बोलेंगे, हम तो गीत गाएंगे, हम तो वर्शिप करेंगे, हम तो गवाही देंगे और शाम फसा में गीत गाएंगे, मिशन क्रूसिफिक्शन के गीत गाएंगे, रियाज पर हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गीत हम गाएंगे जब मसाया गीत गा के गया गत्सेमनी बाग, आज भी गाएंगे, आज भी। वो हमारा शहंशाह है, वो हमारा बादशाह है। उस रोज तो वो गधे पे आया, अब वो बोलिए सफेद घोड़े के ऊपर, अब वो व्हाइट हॉर्स के ऊपर आ रहा। पहले तो वो हम्बल हो के आया, गधे के ऊपर सवार होकर हैकल को पाक किया, अब अपनी पाक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर, और अपनी मुंह की तलवार यानी मुंह की फूंक से, कलाम से एंटी क्राइस्ट को हलाक करेगा। मुझे आपको बचाने के लिए, लेने के लिए आ रहा है। तो अब आप देखिए, हम जो बैठे हैं उसको बादशाह मान लिया है, अब आ रहा है उसकी रान के ऊपर। बोलिए क्या लिखा? बादशाह का बादशाह खुदावंद का खुदावंद। अब सारी दुनिया का बादशाह, कल इजराइल का, पर अब सारी दुनिया का बादशाह वो होकर रहा। मैंने आपको बताया इजराइल से कहा मुलाकात की तैयारी कर, जो उन्होंने की, पर क्राइस्ट के लिए इनकाउंटर हुआ, पर थोड़ा हुआ, थोड़े इजराइली आए, पर आए जरूर। इनकाउंटर हुआ, होशाना के नारे मारे गए। उन्होंने कहा दाऊद बादशाही आ रही है, इब्ने दाऊद आ रहा है, किंग आ रहा है, मसाया आ रहा है। डिक्लेयर उसने अपने आप को कर दिया। ने भी आके पूछा था कि यहूदियों का बादशाह, लोगों को इतनी नहीं समझती। वो सेनेड्रियन को पता चला या रोमन्स को पता चला, मगर जब गधे पे बैठा, मुलाकात की तैयारी की और उन्होंने कपड़े रास्ते में बिछाए, डालियां बिछाई, डालियां हिलाई कि मेरा बादशाह आ गया है, मेरा आपका बादशाह 2000 साल पहले आ गया है, उसने जान कुर्बान की है और अब्दुल्लाबाद बादशाही करके मुझे आपको यहां भी मौजूद है, 1000 साल बादशाही में भी ले जाएगा, फिर अब तीर के अंदर ले जाएगा। उन्होंने कम इजराइलियों ने इनकाउंटर किया, पर मेरा आपका इनकाउंटर एज किंग, वो हमारा बादशाह हो रहा है, मुलाकात हो रही है, वो हमारा बादशाह है, उसके बेटे बेटियां हैं, उसकी बादशाही के अंदर है। और ये मुलाकात हम करते ही रहेंगे, गीत गाते ही रहेंगे, बताना करते ही रहेंगे। और आज ये कहेंगे कि पत्थर नहीं, जिंदा पत्थर चिल्ला रहे हैं कि वो हमारा बेटा है, हमारा बादशाह है, किंग है, और हम उसके बेटे बेटियां हमेशा उसकी करते रहेंगे। आइए खड़े।